اور کئی سماجی اور دوسرے کاموں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، مسز الماس مصطفیٰ۔ آپ پرنسپل ہیں انڈین پبلک اسکول کی، اور ایک ہماری جج ہیں آج کی مباحثے کی، جو کہ تنظیم فانوس کی دعوت پر بطور خاص میرپور خاص سے تشریف لائی ہے اور سندھ ڈویژن کی بہترین مقررہ رہ چکی ہیں، کئی انعامات، کئی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں اپنی شعلہ بیانی کی بنا پر۔ آپ کی تالیوں میں نصرت وحید۔ آپ کی اجازت سے میں اس ایوان میں آج کی قرارداد پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آج جو قرارداد اس ایوان میں بحیثیت قائد ایوان میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ان الفاظ پر مشتمل ہے کہ اس ایوان کی رائے میں آج کی مہنگائی عورت نے بڑھائی۔ بحیثیت قائد ایوان سب سے پہلے میرا فرض یہ ہے کہ قرارداد میں موجود تمام الفاظ کے معنی اور مفہوم بیان کر دوں تاکہ میرے بعد آنے والی معزز قاعدے حزب اختلاف اور ان کے حوالی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر بحث کو کسی اور صنف میں نہ لے جائے۔ وقت ہے اب بھی کہ صنفوں کا تعین کر لیں۔ سانس جب ٹوٹنے لگتا ہے سمجھتا ہے۔ صدر قرارداد کا سب سے پہلا لفظ ہے آج، اور آج کے لغوی معنی ہیں آج کے دن اور زمانہ حال۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتی جاؤں کہ اس لفظ آج کا اطلاق صرف آج کے دن پر نہیں ہوتا بلکہ فی زمانہ۔ قرارداد کا دوسرا اہم لفظ ہے مہنگائی۔ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مہنگائی کہ اس کے مطابق معاملہ ہے خورد و نوش اور دیگر اشیاء کا جس میں جنس بھی شامل ہے۔ جب ہم فی زمانہ کہتے ہیں تو پھر مہنگائی کا اطلاق کسی ایک علاقے، کسی ایک ملک یا چند ممالک پر نہیں ہوتا بلکہ جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر اس کا اطلاق پورے سماج پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں انسان ہے، جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہ مہنگائی کا شکار ہے، اور اس بات کی دلالت خود قرارداد میں موجود ہونے والا لفظ عورت کر رہا ہے۔ صدر عورت جس کے متعلق مشہور ہے، لیکن میں یہاں ایک بات کی وضاحت اور کر دوں کہ اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ آج کی مہنگائی عورت نے بڑھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں عورت ہے وہاں مہنگائی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر حیدرآباد میں عورت ہے تو لاہور میں عورت نہیں، مغرب میں عورت ہے تو مشرق میں عورت نہیں، پاکستان میں عورت ہے تو امریکہ میں عورت نہیں، یعنی جہاں جہاں عورت ہے وہاں وہاں مہنگائی ہے۔ اور عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20 سال کے درمیان عورت بر اعظم افریقہ کی مانند ہوتی ہے، پرسرار اور نادرکار۔ 20 سے 25 کے درمیان بر اعظم ایشیا کی طرح گرم اور مرطوب جو اپنی ہی آگ میں جلتی ہے۔ 25 اور 30 کے وقفے کے دوران امریکہ کی مانند ہر سیاح ادھر کو جانا چاہتا ہے، اور 40 سال تک اس کی حالت یورپ کی طرح خستہ اور پامال ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بر اعظم آسٹریلیا کی مشابہت رکھتی ہے جو خط استوا سے نیچے ہے اور کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ بیٹا بھی کہ جس کے لیے اس نے تن من دھن قربان کر دیا اور جس کی جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر قیمتی سے قیمتی چیز ہر قیمت پر حاصل کر کر اس نے اس کو دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ عوامل تلاش کریں کہ جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج کی مہنگائی عورت کی وجہ سے۔ وہ کون سے عناصر ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گرہ فروشی عورت کی بدولت ہے؟ تو جناب والا، علم معاشیات کے مختلف مفروضوں کے باوجود مفکرین قلب و رسد کے فلسفے پر متحد ہیں، اور قلب رسد کے فلسفے کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے آج اس ایوان میں 100 آدمی آ جائیں اور بیٹھنے کے لیے صرف 50 کرسیاں، تو 50 کرسیاں ہمیں مزید اور بنانی پڑے گی، بصورت دیگر ان کو
बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिलेंगी, यानी रसद कम हो जाएगी और तलब बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह माशियात के हवाले से अगर मार्केट में किसी भी एक चीज की तलब बढ़ जाए और उसकी रसद कम हो जाए तो वो महंगी जाया करती है। तलब का मसला आदतन इंसानी समाज का मसला है। इंसानी समाज में आबादी में इजाफे का मसला है, जबकि रसद का मसला वसाइल का मसला है। जब आबादी में इजाफा होगा वसाइल कम होंगे। जिसका सत्यानुसार आटे की तस्दीर मुमकिन नहीं हो पा रही है, तो पेशावर में वो रोटी जो 1.5 रुपए की बिका करती थी आज 8 रुपए की बिका कर रही है, यानी महंगाई बढ़ रही है, इसलिए तलब बढ़ रही है। सत्यानुसार सवाल ये पैदा होता है कि हम आज की महंगाई का जिम्मेदार औरत को क्यों ठहरा रहे हैं, मर्द को क्यों नहीं ठहरा रहे हैं। जहाँ अगर हम खुले दिल से सोचें तो मर्द नौकरी करता है, अपना खून पसीना एक करता है, कमाकर लाता है, इसके लिए औरत के लिए। औरत 4 जावियों से मर्द की जात के साथ वाबस्ता है, माँ, बेटी, बीवी, बहन। मर्द कमाकर लाता है और घर का खर्च लाकर रखता है औरत के हाथ पर, औरत घर का खर्च चलाती है। यही वजह है कि हर दौर में जब भी कभी कहीं खर्च बढ़ा है तो इसकी बदौलत मर्द नहीं है, उसकी वजह औरत होती है, क्योंकि मर्द के साथ सनफ़ नाजुक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि औरत के नाम के साथ सनफ़ नाजुक का लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो अपनी आराइश और ज़ेबाइश में हर मुमकिन कोशिश करती है जो औरत की फितरत है, और फितरत को बदलना इंसान के बस में नहीं होता। अगर कॉस्मेटिक की बात की जाए तो कॉस्मेटिक का सामान रोजमर्रा के इस्तेमाल में सबसे महंगा इंसान है, जिस पर ना सिर्फ ये किसी एक खानदान बल्कि मुल्की सतह पर भी एक खतीर रकम खर्च होती है, क्योंकि औरत चाहे वो किसी गरीब खानदान की हो, चाहे वो किसी अमीर खानदान की हो, वो अपनी बिसात के मुताबिक अपने मेकअप पर खर्च करती है। ना सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक बल्कि कभी कभार वो अपनी बिसात से ज्यादा खर्च करती है, और ये महंगाई को एक नया जरिया मिल जाता है फरोग पाने का। अगर एक दुल्हन की मिसाल ले ली जाए तो सिर्फ चंद घंटों की तैयारी के लिए, सिर्फ चंद घंटों में खूबसूरत नजर आने के लिए वो महंगे से महंगे ब्यूटी पार्लर में तैयार होने को तरजीह देती है। और सदैली वकार उन ब्यूटी पार्लरों की कीमतें तैयार करने की 5,000 से लेकर 15,000 तक की होती है, और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा हो जाती है। और सदैली वकार सिस्टम ये है कि दुल्हन की चंद घंटों की तैयारी के लिए एक लड़की को शादी की तारीख से 1 हफ्ते पहले से पार्लर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और शायद मैं देखते हुए ही कहा था कि उम्रे दराज मान के लाए 4 दिन, 2 पार्लर में कट गए, 2 बाजार में। जहाँ शादी ब्याह के हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारे जनूबी एशिया में अगर बाकी तमाम अजीजों को छोड़कर सिर्फ मियाँ बीवी यानी दूल्हा की बात की जाए तो शादी में कभी मर्द के कपड़ों की नुमाइश नहीं होती, बल्कि औरत के कपड़ों की, उसके जहेज की, उसके जेवर की जो वो साथ लाती है उसकी नुमाइश होती है। और हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि जब उसकी शादी हो तो चाहे वो कितनी ही गरीब क्यों ना हो, तो अपने दायरे कार रहते हुए हर मुमकिन तरीके से अपनी दौलत की नुमाइश में मुमताज न कराए। अगर इन चीजों को और से देखा जाए तो ये अखराजात रूटीन बजट पर बड़ी बुरी तरह असरअंदाज होते हैं, और जाहिर है इससे महंगाई में इजाफा होता है। अगर दूल्हा दुल्हन के कपड़ों का तकमीमा लगाया जाए तो दूल्हे मियाँ का सूट अगर महंगे से महंगा भी तैयार होगा तो उस पर लागत आएगी 15,000 रुपये, यानी वो सूट जो बहुत महंगा है, लेकिन ये वो सूट होगा जो इंतहाई महंगा। लेकिन जब बात आएगी दुल्हन के कपड़ों की तो बात 40,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए बल्कि इससे भी ज्यादा तक पहुंच जाती है। और वो सूट जो शादी ब्याह की दिनों के लिए तैयार किए जाते हैं वो आम दिनों में नहीं इस्तेमाल होते, इसलिए कि वो इतने वजनी होते हैं कि अगर आम अयाम में वो पहने जाए तो आदमी पागल महसूस करेगा। और फिर उन तमाम जोड़ों को ये कहकर एक तरफ डाल दिया जाता है एक ओल्ड फैशन है। शादी की रस्मों में ढोलकी, मांझा, मेहंदी और ऐसी बेशुमार बेनाम तकरीबात होती हैं, इन सब का ताल्लुक मर्द की जात से नहीं होता, औरत की जात से होता है। मर्द का ताल्लुक सिर्फ बारात और वलीमे के खाने
अलगाव से सबसे ज्यादा परेशान खवातीन की नजर आ रही है, इसलिए कि अब घर जाकर कमर कसकर किचन में खाना पकाना पड़ेगा, टेबल पर खाना लगाना पड़ेगा। कहाँ वो दौर था कि कुछ गप्पियां बेईमान के साथ लगा करती थी, साथ साथ मुख्तलिफ डिशेस से इंसाफ हुआ करता था, एक दूसरे के कपड़ों पर तबसरे हुए करते थे। लेकिन अब ये तमाम अयाशियां, ये तमाम आराइशें, ये तमाम ज़ेबाइशें खत्म हो गई। और शायर ने ये देखते हुए कहा था कि अगर बज़्म इंसान में औरत न होती तो पैदा कोई भी मुसीबत न होती, निकलता न आदम भी कुल्ले बड़ी से, जहन्नम की कोई हकीकत न होती, अदावत न होती, ये झगड़े न होते, किसी को किसी से शिकायत न होती। सदर इंतजार आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने हक़ाइक़ की झलक दिखाने की कोशिश की है। मेरा मकसद हरगिज़ औरत की मुखालफत करना नहीं था, मेरा मकसद था उस महंगाई की मुखालफत करना, उस महंगाई की मुखालफत करना जो औरत की बदौलत माशरे में फैल रही है। मैंने हकीकत में मबनी करारदाद पेश की है और अब फैसला इस ऐवान के हाथ में है कि वो हकीकत पसंद होने का सबूत दें और करारदाद के हक में अपनी राय दें। मैं जानती हूँ कि मौजूद फायदे इख्तिलाफ अभी तशरीफ लाएंगी और अपनी दलाइल से, अपनी बातों से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये उनका हक है, लेकिन असली हक है इस ऐवान का जो इस करारदाद के हक में। आज की महंगाई और माफ कीजिएगा, औरत ने बढ़ाई। इस जुबान को हमेशा सच बोलने की आदत रही है, लिहाजा झूठ बोलते हुए लड़खड़ा के माफ करके ऐसी करारदाद न देखी न सुनी, और आज जब सुनने को मिल रही है तो सिर्फ एक बात का एहसास हो रहा है कि कायदे ऐवान ने ये करारदाद किसी ऐसे चले चुने मर्द के दिल की आवाज बनाकर पेश की है जो सिर्फ नाजुक पर इल्जाम लगाना तो जानता है, उसे साबित करना नहीं जानता। एक औरत को नुमाइंदा बनाकर इधर खड़ा करके बुलवा तो सकता है, खुद सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। कायदे ऐवान तो मासूम है, कायदे ऐवान तो मासूम है, नहीं जानती कि आज एक बार फिर ये मर्द अपने अमाल की स्याहकारियों का जिम्मेदार, उनके नताइज का जिम्मेदार औरत को ठहराते हुए खुद बरीउस्सिमा होने की कोशिश कर रहा है। औरत को औरत से लड़ाने की, औरत को औरत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कितनी अच्छी कोशिश है, कितनी अच्छी कोशिश है, जिसे आज मैं आप सब ये ऐवान और आखिर में खुद कायदे ऐवान नाकाम बनाएंगी। खुद को इस इल्जाम से बरीउस्सिमा करके, औरत को बाइज्जत बरी करके और अपने और हम सब के मुस्तक़बिल को महफूज करके। जनाब वाला, कायदे ऐवान ने कहा, इस ऐवान की राय में आज की करारदाद है, आज की महंगाई औरत ने बढ़ाई। माफ कीजिएगा जनाब सदर, कायदे ऐवान ने इस ऐवान की राय में ये लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल किए तो कैसे किए? ये ऐवान तो अपनी राय आखिर में देगा, इस वक्त ये करारदाद सिर्फ कायदे ऐवान की राय है। जनाब वाला, अब क्यों उस दिन की फिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। तुम खौफो खतर से दर गुजरो, जो होना है सो होना है, गर हंसना है तो हंसना है, गर रोना है तो रोना है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जनाब वाला, जिंदगी अमल से दूर नफ्स के गुलाम बन, ईमान से खाली और खुदा से गाफिल बन, अपनी सुबहों का आगाज हरारत ईमानी से करने के बजाय अपनी रातों का इख्तिताम डिस्को पे करने वाले मर्द, कुर्सियों और मनसबों पे लड़ने वाले मर्द, रिश्वतों और जागीरों पे मरने वाले मर्द आज अपने अमाल बद का जिम्मेदार उस औरत को ठहराते हैं जो माँ के रूप में अजीम है, बहन और बेटी के रूप में ईसार है और बीवी के रूप में वफा का समंदर है। आज की महंगाई बढ़ाने का इल्जाम औरत पे लगाते हैं, जबकि महंगाई तो मर्द के मीम से शुरू होती है। सदरे आली वक़ार, जिस कौम का अमीर माल मस्त और फकीर खाल मस्त हो, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज जिस कौम के कौमी मिजाज का हिस्सा न रहे, रिश्वत लूट खसूट और ज़ख़ीरा अंदाजी जिस कौम के नज़दीक कोई बुराई न समझी जाए, तो ऐसे माशरे में महंगाई ही जन्म लेती है।
क्या आप कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है ये सिर्फ पाकिस्तान के मर्दों की वजह से है? नहीं, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि इसकी जिम्मेदार एक औरत भी है। क्या आप सब कह सकते हैं कि मनशियात के फैलाव का जिम्मेदार सिर्फ मर्द हजरात है? नहीं, वो स्मगलर हैं जो जिन्स की कैद से आजाद हर जिस्म में जहर उतारते हैं। क्या आप ये इल्जाम आयद कर सकते हैं कि कराची के बदतर हालात इस मुल्क के नाअहल मर्दों की वजह से है? नहीं, यह हालात मर्दों या औरतों की वजह से नहीं, इस मुल्क की नाअहल इंतजामिया की वजह से है। सदर आले बहार, खामियां इंसानों में होती हैं और इंसान मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, और जब माशरती बुराई की बात की जाती है तो ना मर्द की बात की जाती है ना औरत की बात की जाती है, पूरे माशरे की बात की जाती है। इल्जाम देना है तो इस मुल्क के एक एक फर्द को दे, हर उस मर्द को दे और हर उस औरत को दे जो इस नाक़िस निज़ाम, नाक़िस हुकूमत और नाक़िस मईशत के खिलाफ अंधा, बहरा और गूंगा बना रहा। मेरे हैसियत लोगों की तरह आबादी के उस हिस्से को निशाना ना बनाए कि जो अपने तहफ़्फ़ुज़ में आवाज तक नहीं बुलंद कर सकता। आज की महंगाई ये औरत कैसे बढ़ा सकती है कि वो खुद इसी माशरे में जिंदा है, उसके बच्चे इसी दुनिया में खाते हैं, यही उसका शौहर मेहनत मजदूरी करता है, यही उसका बाप उसके बहन भाइयों के कम बोझ उठाता है। ये औरत जो खुद पैसे के लिए मर्द की मोहताज रही है, उसकी कमाई पर महीने की एक तारीख से दूसरी तारीख निकालती है, महंगाई कैसे बढ़ा सकती है? लिहाजा जनाब सदर करारदाद खुद रद्द होती है। आयत ऐवान से कहूंगी, अपनी ही आवाज को बेशक कान में रखना, लेकिन शहर की खामोशी भी ध्यान में रखना। मेरे झूठ को खोलो भी और तोलो भी तो, लेकिन अपने सच को भी मीज़ान में रखना। जनाबे वाला, आयत ऐवान ने इल्जाम दिया कि शादियों में खाने पर पाबंदी से सबसे ज्यादा खवातीन परेशान हैं। डॉन अखबार की एक खबर के मुताबिक मुल्तान में एक लड़की की बारात आनी होती है और लड़के का बाप सिर्फ इस वजह से बारात आने से रोक देता है, मना कर देता है कि लड़की का बाप कानून की पाबंदी करते हुए 500 आदमियों को खाना खिलाने से इनकार कर देता है। सदर आले बहार, आयत ऐवान ने कहा कि जब महंगाई की बात की जाती है तो पूरे समाज की बात की जाती है, पूरी दुनिया की बात की जाती है, सारी औरतों की बात की जाती है, चाहे वो एशिया की हो, चाहे यूरोप की, चाहे अमेरिका की। जनाबे वाला, मैं इनकी इस बात से इख्तिलाफ करती हूँ। मेरे ख्याल में जब आज ये कहा जाता है कि आज महंगाई औरत पे बढ़ाई तो सिर्फ एशिया की औरत की बात की जाती है, इस दुनिया की औरत की बात की जाती है कि जो इतनी कमजोर है कि मर्द के लगाए गए इल्जाम के खिलाफ आवाज न उठा सके। आपने कहा मर्द कमाता है और 4 जावियों से बेटी, बीवी, बहन और माँ, औरत उस पर बोझ है। माफ कीजिएगा, आज की औरत मर्द के साथ शाना बशाना कमा रही है, नहीं कमा रही होती तो आज मर्द अपनी पैदा की गई इस महंगाई के बोझ तले कब का खत्म हो चुका। दूल्हा दुल्हन पे आपने काफी रिसर्च की थी, एक बेलाग तबसरा फरमाया तो जनाबे वाला, वो दुल्हन जो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अपने दूल्हा के घर ना जाए तो अगले ही दिन दूल्हा अम्मा से फरमाइश कर दे कि दूसरी लाओ। आज की महंगाई औरत ने बढ़ाई। हाँ भाई, कपड़ों और जूतों की दुकानें तो सिर्फ औरतों ही से आबाद है, मर्द तो अब तक पत्ते बांधकर गुजारा करते हैं। बिजली महंगी हुई औरत की वजह से, छत पे चारपाई डालकर मर्द तो हाथ वाला पंखा झलते हैं। तालीम महंगी हुई औरत की वजह से, बच्चे तो सिर्फ माँ के होते हैं, बाप तो अच्छी तालीम कतई जरूरी नहीं समझते। इंसाफ महंगा हुआ औरत की वजह से, मर्द तो सिर्फ जुल्म करना जानता है, अदालतों के दरवाजे तो औरत ही खटकाती है ना। अरबों रुपए के कर्जे चढ़े औरतों की वजह से, सारी करप्शन और सारी हरस तो औरतों में ही है, मर्द तो पैदा हुए पाक पवित्र। शादियां महंगी हुई औरतों की वजह से, मर्द बेचारा तो दूल्हा बनता ही नहीं, वो तो लड़की जहेज की पेटियां संभाले खुद दरवाजे पे आ जाती है तो अंदर बुला लेता है। जनाबे वाला, बात करती है कि शादियों में खाना बंद हुआ, पहले खाना महंगा हुआ, और
عورت کی وجہ سے. وہی تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتی ہے. مرد بیچارہ تو باہر گاڑی کھڑی کر کے ریڑھی والے سے گول گپے کھا کے گھر چلا جاتا ہے. آٹا مہنگا ہوا عورت کی وجہ سے. بھائی مرد نے آٹے کا کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. یہ تو عورت اسے فیس پاؤڈر کے طور پر استعمال کرتی ہے. جناب والا آئے ایوان ذرا عقل و خرد کو چھوئے. خیالات کی بات کچھ اور ہے، کمال تدبیر کچھ اور، جوش تقریر کچھ اور ہے، مقام تذکیر کچھ اور، ہوائی قلعے بنانا کچھ اور ہے، ذوق تعمیر کچھ اور، الزام پر الزام لگانا کچھ اور ہے، اور قرارداد پیش کر کے اسے منظور کروانا کچھ اور. افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج اس عورتوں کے ایوان میں الزام لگانے والی بھی ایک عورت ہے، کٹپتلی صحیح. مہنگائی لانے والا مرد مہنگائی بڑھانے کا الزام اس عورت پر لگاتا ہے جو معاشرے کے جبر کے ہاتھوں نہ اپنے جذبوں سے انصاف کر سکتی ہے نہ اپنی ضروریات سے، جو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے وحشی مرد کے وحشی پن کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے، اس تک نہیں کرتی. اس مرد کے دیے گئے 8 بچوں کو بٹھائے خالی ہانڈیاں ابھالتی رہتی ہے، احتجاج تک نہیں کرتی. پاؤں میں جوتی ٹوٹتی ہے، تن میں چتھڑے لٹکتے ہیں، آواز تک نہیں بلند کرتی. ہیروئنچی شوہر کو پھر بھی مجازی خدا کہتی ہے. قائد ایوان کے حوالیوں اور خود اپنے حوالیوں سے اتنا کہوں گی کہ قائد ایوان سے جو لفظش ہوئی سو ہوئی، اس کا مداوع وہ بعد میں گرا کے کر لیں گی. لیکن اب اس ٹائپ سے آنے والے اور اس ٹائپ سے آنے والی ہر عورت، ہر لڑکی کا فرض ہے کہ وہ اس عورت کی حرمت کا تحفظ کرے جو پاکستان کی عورت ہے، جو تیسری دنیا کی عورت ہے، جو ایشیا کی عورت ہے، جو ہر استحصالی طبقے کی عورت ہے، جو آپ کی ہے، جو میں بھی ہوں اور جو قائد ایوان بھی ہے. آئیے اور اس قرارداد کو نامنظور کر کے دکھائیے تاکہ کل آپ میں سے ہر دختر پاکستان اور آنے والی نسل فخر سے سر اٹھا کر جیے، نہ کہ مجرمہ کی طرح سر جھکا کر. اپنی بات کا اختتام کشور ناہید کی اس نظم پر کرتی ہوں. مجھے سزا دو، مجھے سزا دو کہ میں نے اپنے لہو سے تعبیر خاک لکھی، جنوں بریدہ کتاب لکھی. مجھے سزا دو کہ میں نے تقدیر سے خواب پردہ میں جنگ گزاری، یہ لطف شب کا گزاری. مجھے سزا دو کہ میں نے قاتل کو وصف تیغ و علم سکھایا، سروں کو اوج قلم سکھایا. مجھے سزا دو کہ میں عدو کی صلیب کی محتسب رہی ہوں، ہوا کی زد پہ چلے چراغوں کی روشنی. مجھے سزا دو کہ میں نے دوشیز کی سودائے شب گواں سے رہائی دی تھی، گھروں کے بجھتے دلوں کو شان خدائی دی تھی. مجھے سزا دو کہ میں جیوں تو تمہاری دستار گر نہ جائے. مجھے سزا دو کہ میرے بیٹوں کے ہاتھ اٹھے تو تم نہ ہوگے، کہ ایک بھی تیغ ہر پاسے میاں سے نکلے تو تم نہ ہوگے. مجھے سزا دو کہ میں تو ہر سانس میں نئی زندگی کی خوگر، حیات بعد حیات بھی زندہ تر رہوں گی. مجھے سزا دو کہ پھر تمہاری سزا کی میعاد ختم ہوگی. شکریہ.